مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ویپنز آف گاڈ ٹی وی کے لیے، جہاں پہ خداون نے یہ ممکن کیا کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کا کلام سنتے ہیں مبشر یوسف کے ساتھ۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا فضل ہم پر ہوا کہ ہم اس کے حضور ہیں اور اس کے کلام کو سنیں اور خدا کے کلام کو دیکھیں گے، سنیں گے۔ نیا عہد نامہ رسولوں کے اعمال 3 باب اور اس کی 19 آیت پڑھیں گے اور بڑی غور سے سنیں گے۔ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آج ہمیں بہت بہت برکت دینے والا ہے۔ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اسی طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ویپنز آف گاڈ ٹی وی کے لیے، جہاں پر یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ دعا کے بارے میں سیکھا، روح کو نہ بجھاؤ خداوند سے سیکھا، اور آج پھر سے بڑی ہی خوبصورت بات جو خدا ہمیں آج سکھانے والا ہے، توبہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ توبہ کے بارے میں آج دیکھیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں آج خدا ایک بار پھر سے اس جو حوالے اس آیت میں جو پڑھا گیا کچھ اور ہمیں سکھائے گا۔ توبہ جو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ کرانے کا ایک راستہ ہے۔ توبہ جو ہے خدا کے ساتھ ہماری رفاقت جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ توبہ جو ہے خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ توبہ خدا کے ساتھ ہماری واقفیت کرانے کا ایک طریقہ ہے جو بائبل میں ہمیں ملتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں گا جو خدا نے مجھے سکھائی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جب ہم پانی والے پمپ کا بور کرواتے ہیں تو دیکھتے ہیں جب بور ہو جاتا ہے نا، پمپ کو چلاتے آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب آن ہوتا ہے تو گندا پانی نکلتا ہے، مٹی والا میلا پانی نکلتا ہے، اور پمپ جیسے جیسے چلتا رہتا ہے وہ آہستہ 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 پانی صاف ہوتا ہے۔ کب صاف ہوتا ہے؟ جب آہستہ آہستہ پمپ چلتا رہتا ہے۔ وہ گندا پانی جب باہر آتا ہے تب ہی صاف پانی پمپ میں سے، زمین میں سے باہر آتا ہے۔ اور ایک بات جو ہم نے رسولوں کے اعمال میں سے پڑھی، بڑی غور کے ساتھ ایک ایک لفظ پر غور کریں، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ توبہ کرنا صرف یہاں تک بات نہیں ہے، جیسے کہ سکول میں ایک بچے، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے پڑھیں لکھیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے عہدوں پر پہنچیں، تو ہمیں اس کے لیے بچوں کو سکول بھیجنا ہوگا، سکول میں داخلہ کروانا ہوگا۔ اور جب بچہ داخل ایڈمیشن بچے کو آتا ہے تبھی اس کی پڑھائی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور توبہ جو ایسی چیز ہے، ایسا خدا کا کلام میں سے ہمیں حکم ملتا ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تبھی ہمیں راست بازی میں، تبھی ہمیں خدا کی حضوری میں، تبھی ہم خدا کی راہ پر، تبھی ہم ایمان پر ایک ایڈمیشن، ہمارا ایک داخلہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم رجوع لاتے ہیں تب ہی لکھا ہے کہ خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے۔ یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ خداوند کے حضور ہی تازگی کے دن ہے، خداوند کی حضوری میں ہی تازگی کے دن ہے، خداوند کی حضوری میں ہی خوشی کے، شادمانی کے، آرام کے ہی، خداوند کے ہی حضور دن ہے۔ وقت ہے کہ آج ہم اس بات کو دیکھیں، اس بات کو جانیں
बड़ी एक खूबसूरत बात यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में बताई मुशर्रफ बेटे की। और याद रखिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में मुशर्रफ बेटे का जो जिक्र है, लिखा है कि मुशर्रफ बेटा अपने बाप के घर वापिस आया, अपने उन सारे कामों को छोड़कर, अपनी उस सारी ऐशो इशरत को जो उसने खत्म कर दी थी, उस सारे दुनियावी कामों को, वो जो मुर्दा काम थे, बाइबल मुकद्दस में मिलता है, जो मुर्दा काम है उनको छोड़कर अपने बाप के घर वापिस आया। और जब अपने बाप के घर वापिस आया तो बाप ने उसे दौड़कर दूर ही से देखकर उसे गले से लगाया। याद रखिए, एक बात कहना चाहता हूं, बाइबल में नहीं लिखी, अगर मुशर्रफ बेटा बाप के पास आता फिर चला जाता वापस, याद रखें बाइबल में उसका जिक्र ना होता। इसलिए जिक्र है कि हम तौबा पर गौर करें, तौबा के लफ्ज पर गौर करें, तौबा के हुक्म पर गौर करें कि तौबा का हुक्म जो है, तौबा का जो खुदा ने हमें ये हुक्म दिया है, यीशु मसीह ने ये फरमान दिया है, पाक रूह ने जो रसूलों के वसीले से आज हम तक ये हुक्म पहुंचाया है कि तौबा करो और रुजू लाओ, खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आए, खुदा उनकी ही हजूर से ताजगी के दिन है। और जैसे जैसे हम तौबा करके खुदाउन में मजबूत होते हैं, खुदाउन में कायम होते हैं, याद रखें तब ही गुनाह मिटते हैं। ये नहीं है कि बस तौबा कर ली सारा खत्म हो गया, हमने निजात पा ली, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अजीजों। तौबा एक एडमिशन है, तौबा एक सिर्फ दाखिला है जो हमने लेना है। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। हमारे अमाल, हमने खुदा के कलाम को देखना है, हमने खुदा के हुक्मों को देखना है। जैसे कि वो पंप चलता रहा, गंदा पानी उसमें से निकला, तब ही बाद में जब वो मुसलसल चलता रहा काफी देर तक, फिर उसमें पानी साफ जारी हुआ। और जब हम तौबा करके खुदा की हजूरी में रहेंगे, रजू करेंगे, तवज्जो करेंगे, ध्यान करेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के कलाम की रफाकत में रहेंगे, खुदा के कलाम की तालीम पाएंगे, रोजे रखेंगे, दुआ में रहेंगे, प्रस्तिश करेंगे, खिदमत करेंगे, खुदा के चर्च में, कलीसिया में, ईमानदारों में हम खुदा की गुफ्तगू को लेंगे, तभी याद रखेंगे, तभी ये बात जो लिखा है ना कि तौबा करो और रजू लाओ, तभी हमारे गुनाह मिटेंगे। तभी वो जो हमने गुनाह पहाड़ों की तरह खड़े किए हुए हैं ना, तभी वो मिटेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ खुदा उनके हजूर जब खादिम ने दुआ की कि सब हाथ ऊपर उठाएं जो तौबा करना चाहते हैं, हाथ ऊपर उठा लिए, तौबा कर लिए, नहीं कि वहां पे खत्म हो गए, गुनाह मिट गए। रजू करेंगे तभी मेरे अजीजों गुनाह मिटेंगे, रजू करेंगे तभी बरकत आएगी, रजू करेंगे तभी हमारे घर में नजात आएगी, रजू करेंगे तभी ताजगी के दिन आएंगे, ध्यान करेंगे, दिल लगाएंगे, अपनी जिंदगी खुदा उनको देंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, उसके कलाम को अपने दिल में रखेंगे, तभी ताजगी के दिन आएंगे। खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत बात ज़बूर नवीस में मिलती है, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर। याद रखिए, जब खुदा के कलाम पर रुजू करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तब ही गुनाह नहीं होगा। अगर खुदा का कलाम नहीं अंदर, तौबा कर लिया, ऐलान कर दिया है, दाखिला ले लिया है और रजू नहीं करेंगे, याद रखे क्लियरली आपसे चीजों कह रहा हूं कि ताजगी के दिन नहीं आएंगे, बरकत नहीं आएगी, शादमानी नहीं आएगी, तसल्ली नहीं आएगी, हमारी जिंदगी में आराम सुकून नहीं है जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है। और वो तब ही होगा जब हम रजू करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे तौबा के बाद। और तौबा जो है वो अपने गुनाहों की माफी के लिए, तौबा जो है वो खुदा के साथ चलने के लिए, तौबा जो है मुर्दा कामों को खत्म करना, मुर्दा कामों से दूर रहना। अब मुर्दा काम आप सभी जानते हैं, जो खुदा को नहीं पसंद वो मुर्दा काम, जो हमें खुदा से दूर रखते हैं वही मुर्दा काम है, जो हमें खुदा से अलग करते हैं वही मुर्दा काम है। और उन्हीं से हमें तौबा करनी। तौबा दुनियादारी को छोड़कर, दुनिया के कामों को छोड़कर,
मुर्दा कामों को छोड़कर, जिस्म की ख्वाहिशों को छोड़कर, अपने ख्यालों, अपनी सोचों को जो जिस्मानी हैं उनको छोड़ना ही तौबा है। पुरानी इंसानियत को ढा देना ही तौबा है। जैसे कि खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर दोबारा बनाऊंगा। जब हम तौबा करते हैं तो हम सब कुछ ढा देते हैं, जो बड़े बड़े गुनाह पहाड़ों टीलों की तरह हमने खड़े किए। जब तौबा करते तो हम उसे ढा देते हैं। जब वो ढा देते हैं तभी खुदा को देख सकते हैं, यीशु मसीह को देख सकते हैं। और यही खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और याद रखें, जब हम तौबा करते हैं तो खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत शुरू हो जाती है। जब हम तौबा करते हैं खुदा के साथ हमारा रिलेशन बन जाता है। जब हम तौबा करते हैं यीशु मसीह के साथ हमारी रफ़ाकत हो जाती है, यीशु मसीह के साथ हमारी गुफ्तगू हो जाती है। और अगर हम चाहते हैं कि वो गुफ्तगू, वो रफ़ाकत, वो रिलेशन, वो रिश्ता, वो तल्लुक, वो जान पहचान, वो वाकफियत और बढ़े तो उसके लिए ज़रूरी है हमें रुजू करना चाहिए। तभी वो गुनाह मिटते जाएंगे, वो गंदा पानी निकलता जाएगा, वो मैला पानी निकलता जाएगा। कब? जब हम रुजू करेंगे, दिल लगाएंगे, मसरूर रहेंगे खुदा में, तभी वो गंदा पानी निकलेगा जो बोर के बाद निकलता है और उसके बाद साफ पानी निकलता है। और तभी खुदावंद हमें शादी की ज़ियाफ़त में साथ लेके जाएगा। याद रखिए अजीज़ों, बहुत ज़रूरी, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है तौबा करना। जब तक तौबा नहीं करते, रुजू नहीं लाते, मेरे अजीज़ों आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमारी दुआएं भी रुकी रहती हैं, हमारी बरकत भी रुकी रहती है। क्यों रुकी रहती है? एक आखिरी बात करके क्लोज करेंगे, पूरा करेंगे। एक गिलास में अगर हम कोल्ड ड्रिंक डालें और अगर हमें उसमें सादा पानी लेना हो या दूध लेना हो, तो सबसे पहले उस गिलास को खाली करने के बाद अच्छी तरह धोने की ज़रूरत है। फिर ही हम उसमें दूसरी चीज़ को डाल सकते हैं, पानी को डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब तौबा कर ली है तो खुद को साफ करने के लिए, वो गुनाहों को मिटाने के लिए, वो गुनाहों को ख़त्म करने के लिए हमें रुजू की ज़रूरत है। अपनी बरकत पाने के लिए, दुआ जो हमारी आसमान तक खुदा के हुजूर पहुंच जाए, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले तौबा करें। सो हासिल कलाम हमारे लिए यही है कि सबसे पहले तौबा करनी है, रुजू करना है, ध्यान लगाना है, तब ही गुनाह मिटेंगे और फिर ताज़गी के दिन आएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको खुदावंद बरकत दे, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद जिंदा जलाली बहरोबर के मालिक, तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदावंदों का खुदा है। अच्छा टीचर तू है, अच्छा चरवाहा तू है, अच्छा उस्ताद तू है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खूबसूरत कलाम के लिए मेरे खुदा, जो रात तूने बताई मेरे खुदा, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे। जो दरवाज़ा आज तूने मेरे लिए सबके लिए खोला, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा। तेरी वाकफियत मेरे खुदा, तुझसे रफ़ाकत के लिए, तुझसे रिलेशन के लिए मेरे खुदा, आज जो तूने सबके लिए एक राह बना दी, एक दरवाज़ा खोल दिया, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तेरा ये कलाम हर एक जिंदगी पर असर करे मेरे खुदावंद। तेरा कलाम जो बंद और गुदे गुदे को जुदा करता है मेरे खुदावंद, खुदा गुजर जाता है मेरे खुदा। तेरा ये कलाम हर एक दिल पर चोट करे मेरे खुदा। और खुदा जो राह, जो दरवाज़ा तूने खोला मेरे खुदा, उस पर ये जिंदगियां बढ़े खुदा। बाप बेटे पाक रूहुल कुदुस की बरकत फजल बढ़े मेरे खुदा। आसमानी बाप लश्करों के खुदा रजूल आए मेरे खुदा, तुझ पर ध्यान करे, दिल लगाए, ताजगी के दिन तुझसे हासिल करेंगे। सब पर तेरी रहमत, तेरी शफकत, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। इस चैनल के लिए, वेपन्स ऑफ गॉड टीवी के लिए मेरे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बेटे जैन के लिए मेरे खुदा, आसमानी बाप अपनी बीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ।
جو خدا اس چینل کے ساتھ جڑے ہیں ان سب کے لیے تیری شکر گزاری کرتا اور برکت، فضل، رحمت، شفقت مانگتا ہوں۔ یسوع مسیح کے پاک نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔